children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Rocks and Soil. Let's learn about soil, types of soil, formation of soil and importance of soil. The earth was formed around 4,500 million years ago. It is made up of soil and rocks. Rocks are made of tiny particles called minerals. Rocks such as marble, granite and sandstone are used to make buildings. Some minerals such as diamond, ruby and emerald are used in jewelry. Diamond is the hardest rock. Earth आपको पता है इतने साल पहले बनी है और ये आपके सॉइल्स एंड रॉक्स से बनी है. रॉक्स आपके होते हैं, आपके जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं मिनरल से बने होते हैं. जैसे कि आपके मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, ये क्या है आपके रॉक्स हैं जिनसे आपकी बिल्डिंग्स बनाई जाती है. कुछ आपके मिनरल्स हैं जैसे डायमंड, रूबी, एमराल्ड, इनसे आपकी ज्वेलरी बनाई जाती है. एंड डायमंड तो आपका हार्डेस्ट रॉक है. डू यू नो इट टेक्स 100 years फॉर नेचर टू क्रिएट 1 inch ऑफ टॉप सॉइल. आपको पता है 1 inch टॉप सॉइल की बनने में लगते हैं आपके 100 years. Soil. Soil is a precious gift of nature. It is the topmost layer of the earth. It gives life to all living things. Plants grow in the soil. Plants are the source of food for all living beings. Life cannot sustain without them. Since plants depend on soil, life cannot exist without the soil. Soil nature का precious gift है. ये earth का topmost layer है. ये जितने भी living beings हैं उनको life सपोर्ट करता है, लाइफ सपोर्ट करता है, राइट. प्लांट्स आपके सॉइल में ग्रो करते हैं. प्लांट्स आपके फूड के सोर्सेज आपको पता है. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. डू यू नो हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड? The force of water and wind and changes in weather break the rocks into very small pieces and form the soil. When plants and animals die, their bodies rot and mix with the soil and become a part of it. Rotten plants and animals are called humus. Humus is dark brown in color. It is very good for the growth of plants. देखिए जो वाटर है या विंड की फोर्स की वजह से या जैसे कि वेदर में कोई चेंजेस आते हैं, रॉक्स ब्रेक हो जाती है छोटे पीसेस में और उसके बाद सॉइल बनता है. फिर जैसे कि प्लांट्स या एनिमल्स वो डाई हो जाते हैं, उनकी बॉडीज रॉट होती है, फिर वो मिक्स हो जाती है सॉइल के साथ और उसका एक पार्ट बन जाती है. तो इसे कहते हैं ह्यूमस, यानी कि रॉटन प्लांट्स और एनिमल्स. और ह्यूमस डार्क ब्राउन होता है कलर में और ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है. Thus, soil is made of 2 components, small pieces of rocks and rotted pieces of plants and animals. तो यानी कि soil जो है आपके उसके 2 components से बनी है, rocks के pieces से and जो rotten pieces हैं plants and animals की. The color of the soil differs from place to place. Soil may be light brown in one place and dark brown in another. In India, red soil and black soil are also found. These soils are different in color because they are made from different rocks. अब देखिए आपकी कंट्री में या डिफरेंट प्लेसेस पे सॉइल का कलर डिफरेंट होगा. कहीं पे आपको डार्क ब्राउन मिलेगा तो कहीं पे लाइट ब्राउन मिलेगा. ओके तो एक्चुअली क्यों होता है? क्योंकि कलर डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि ये जो सॉइल होती है वो डिफरेंट रॉक से बने होते हैं. व्हाट डज सॉइल कंटेन? सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग. इट हैज मिनरल्स, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सम वाटर एंड एयर. Soil is made of gravel, sand, clay and humus. Activity. This activity shows that soil contains stones, sand, clay and humus. Take some soil from a garden and put it in a transparent jar. Now pour some water into it. Put the lid and shake the jar. Let the mixture rest overnight. Next day, we can see different layers in the water. Let us see what these layers are. अच्छा, इस एक्टिविटी में हमें क्या शो करना है कि जो सॉइल है उसमें आपके स्टोन, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस होता है. तो इसके लिए आपने क्या करना है, गार्डन से सॉइल को लेना है, एक ट्रांसपेरेंट में जार में डालना है, उसमें कुछ वाटर डालना है, उसका ढक्कन लगाना, उसको अच्छे से शेक करना है. अब इस मिक्सचर को ओवरनाइट रखना है. तो नेक्स्ट डे आप क्या देखेंगे कि उसमें डिफरेंट लेयर्स आ जाएंगे. एट द बॉटम देयर विल बी स्मॉल स्टोन्स कॉल्ड ग्रेवल. Above them will be a layer of soil containing larger particles. These particles are of sand. We can see the particles separately. Above the sand is a layer of soil containing very fine particles. We cannot see these particles separately. This layer is called clay. At the top, we can see some dark brown pieces of humus. तो देखिए 4 layers कैसे आएंगे आपकी. सबसे पहले आपका लास्ट में जो होगा आपका ग्रेवल होगा, जो आपके छोटे छोटे स्टोन्स होंगे. और ग्रेवल से ऊपर आपके होगा, इसमें लेयर ऑफ सॉइल होगी जिसमें लार्जर पार्टिकल्स होंगे, वो सैंड है आपकी. इसमें पार्टिकल्स को हम सेपरेटली देख सकते हैं. और उससे ऊपर आपका होगा क्ले पार्टिकल्स, राइट. तो आपकी जो क्ले पार्टिकल्स से ऊपर, सैंड लेयर से जो ऊपर होगा वो क्ले पार्टिकल्स होंगे. तो हम इन पार्टिकल्स को सेपरेटली नहीं देख पाएंगे. ओके एंड टॉप पे आपके होंगे कुछ ब्राउन पीसेस होंगे जो होगा आपका ह्यूमस.
Soil contains moisture activity. It proves that soil has water. Take some soil in a small container, cover it with a lid. Now put the container on the gas stove and heat it for some time. Open the lid. We see drops of water on the lid. It proves that soil has moisture in it. अब देखो आपको क्या प्रूव करना है कि सॉइल में वाटर है. आपको थोड़ा सा सॉइल लेना है कंटेनर में, उसको ढक्कन से कवर करना है, फिर कंटेनर को अपने गैस स्टोव में रखना है और उसको हीट करना है. तो जब आप लिड हटाएंगे ना तो आप देखेंगे, आप जब उसको ओपन करेंगे तो आपको लिड पे ड्रॉप्स ऑफ वाटर नजर आएंगे. तो इससे क्या प्रूव होता है? दैट सॉइल हैज मॉइस्चर. सॉइल कंटेन्स एयर activity. It proves that soil has air. Take some soil in a small container. Now pour some water over the soil. When the water goes inside the soil, bubbles start forming in it. This happens because air is trapped inside the soil. When water enters these spaces, air tries to escape out. देखिए आपको क्या करना है, सॉइल लेना है एक स्मॉल कंटेनर में, अब उसको में आपने वाटर डालना है. तो जब आप वाटर जैसे जैसे अंदर जाएगा ना, उसमें से आपको ना सॉइल के बबल्स बनना उसमें स्टार्ट हो जाएंगे. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर जो है वो सॉइल के अंदर ट्रैप थी. अब जब वाटर एंटर करेगा उस स्पेस पे तो एयर जो है वहाँ से बाहर निकलेगी. Types of soils. Different types of soils are clay soil, sandy soil, and loamy soil. Soils differ in color, particle size, and amount of air and water present in them. Clay soil. Soil which contains clay is called clay soil. Clay soil consists of very small particles and is very smooth to touch. Potters use clay soil as it is soft and can be easily made into whatever shape he wants. Clay soil is very sticky and water cannot go through the soil easily. It therefore holds a lot of water. Plants cannot grow properly in clay soil as it has no space between the particles to hold air. देखिए आपकी जो clay soil होती है इसमें आपके clay होते हैं. ओके, एंड क्ले सॉइल में आपके बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही स्मूथ होते हैं जब आप उसे टच करेंगे. पॉटर्स जो है वो जनरली क्ले सॉइल का ही यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है और उसको इजीली किसी भी शेप, कोई भी शेप इसे दी जा सकती है. ये बहुत स्टिकी होती है तो वाटर जो है सॉइल के अंदर नहीं इजीली जाता, इसीलिए वाटर को होल्ड करके रखता है. तो प्लांट्स लेकिन जो है क्ले सॉइल में ग्रो नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली क्योंकि इसमें स्पेस नहीं होता है. आपके मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता जो एयर को होल्ड करके रख सके. नेक्स्ट इज सैंडी सॉइल. The soil which contains a lot of sand is called sandy soil. The sea beaches have sandy soil. It is yellow, grey or light brown in color. It has large particles with a lot of spaces between them. It cannot hold much water. Very few plants can grow in sandy soil. देखिए सैंड, जिस सॉइल में आपके सैंड होता है उसे हम कहते हैं सैंडी सॉइल. आप सी बीचेस में चले जाइए, आप वहाँ पे आपकी सैंडी सॉइल होती है. ये येलो, ग्रे या लाइट ब्राउन कलर में आपको मिलती है. इसमें लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है इनके बीच में. ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाते हैं और सैंडी सॉइल में भी ना बहुत थोड़े से प्लांट ही ग्रो कर पाते हैं. Loamy soil. This soil is a mixture of sand and clay. It can hold both water and air. It also has humus in it. It is the best soil for plants. It is because humus makes the soil fertile. अब देखिए सॉइल जो है मिक्सचर है आपका सैंड एंड क्ले का. ये आपका वाटर एंड एयर को होल्ड करके रख सकता है. इसके अलावा इसमें ह्यूमस भी होता है, इसीलिए ये बेस्ट सॉइल होती है प्लांट के लिए. क्योंकि देखिए इसमें ह्यूमस होता है तो ह्यूमस क्या होता है? सॉइल को फर्टाइल करता है. Importance of soil. We grow plants in the soil. Plants take water and mineral salts from the soil for its growth. Farmers grow different types of crops, vegetables and fruits in the soil. We use soil as a building material. We make many useful items such as cement, bricks, tiles, glass and pots from the soil. Sand is used to build houses. अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल का? सबसे पहले तो हम प्लांट्स ग्रो करते हैं सॉइल में, है ना. और इसके अलावा फार्मर्स जो हैं क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ग्रो करते हैं सॉइल में. आपका सॉइल एक बिल्डिंग मटेरियल भी है. हम बहुत सारे यूजफुल आइटम्स जैसे कि सीमेंट, ब्रिक्स, टाइल्स ये सभी बनाते हैं. आपको सभी कहाँ से मिलते हैं? आपके सॉइल से. सैंड से हम घर बनाते हैं. By digging deep into the soil, we get useful resources such as petrol and gas. Soil is a home to many animals like earthworms, ants, beetles, snails and leash. They add humus to the soil and make it fertile. अगर हम सॉइल को डिग करते रहेंगे डीप तो वहाँ पे से काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल रिसोर्सेज मिलते हैं जैसे कि पेट्रोल एंड गैस है. और इसके अलावा सॉइल बहुत सारे एनिमल्स का घर है लाइक अर्थवर्म्स है, स्नेल्स एंड लीचेस हैं. इसके अलावा ये क्या करते हैं एनिमल्स? ये सॉइल में ह्यूमस ऐड करते हैं जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल होती है. We can make soil fertile by adding manures and fertilizers to the soil. Different plants require different types of soil for their proper growth. For example, rice grows well in clay soil, whereas bajra grows well in sandy soil.
हम सॉइल को फर्टाइल करने के लिए उसमें मैन्यूर या फिर फर्टिलाइजर्स को भी ऐड कर सकते हैं। और जब डिफरेंट प्लांट्स को ना डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, जैसे कि राइस जो है वो क्ले सॉइल में ग्रो करता है, जबकि बाजरा को सैंडी सॉइल चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। डू यू नो अर्थवर्म मेक्स tunnels in the soil through which air and water can pass. These tunnels provide oxygen and water to plants, so earthworms are best friends of farmers. Earthworms क्या करते हैं, टनल्स बनाते हैं सॉइल में जिसके थ्रू एयर एंड वाटर पास होती है। फिर ये जो टनल्स हैं ये ऑक्सीजन एंड वाटर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, इसीलिए अर्थवर्म को कहा जाता है बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। Let's remember, the earth was formed around 4,500 million years ago. Rocks are made of tiny particles called minerals. Soil is the topmost layer of the earth. Soil is made of small pieces of rocks and rotted pieces of plants and animals. There are 3 types of soil: sandy soil, clay soil and loamy soil. देखिए रॉक्स जो है आपकी टाइनी पार्टिकल से बनी है जिसे कहते हैं मिनरल्स। सॉइल आपकी टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की, एंड सॉइल में जो है किससे बने हैं, इन सभी चीज़ों से। एंड 3 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं आपकी, सैंडी, क्ले एंड लोमी। चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।